Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture number 2 of week number 3, and in the previous lecture we talked about the different type of layouts. Those are available to acquire the spatial data that is used in GIS environment. And what are those methods? We do acquire the data related to environment, climate, water sampling, water quality, soil mapping, and other kind of environmental factors by using the in situ techniques. And then we record the locations of those data points, and then this data is used in the GIS for performing the different type of tasks. And then we also create the topographic maps based on the land surveying techniques. We already know there are different type of techniques available to establish the horizontal and vertical control of a particular area, and then based on that we acquire the data of different objects and entities, and that data is then imported into GIS, and then we can perform on those entities different type of analysis. So then we talked about there are different photogrammetry techniques. Those are available, and we use the airborne platforms to perform that type of remote sensing, where we can have a remote sensor as a onboard remote sensor onboard on those platforms, and also we can use different cameras to capture the high resolution photos of the earth environment. So we talked about this thing, and then we talked about the satellite based remote sensing that is used for acquiring the information of environment, which is very important to understand what type of different phenomena are going on in our earth environment, and how those are affecting on the population of the earth inhabitants. So we talked about different sensors like Landsat, AVHRR, Certum, Spot, and Aster. So there are other number of satellites. Those are available to acquire the remote sensing data, and that is very handy to perform different analyses to get the desired information. So this is what we talked about in the previous lecture, and in this lecture we are going to talk about the global positioning system. That is actually the navigation system that is used to record the positions of the different objects and entities through the space on the ground, so that different type of tasks could be performed on that spatial data. तो उसके लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने इनिशियली 24 नेविगेशन सिस्टम, 24 जीपीएस जो थे जिनको नेविगेशन सिस्टम भी कहते हैं, उसको उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और जिसको हम कहते हैं 24 नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग NNSV स्टार सैटेलाइट्स। और ये ऑर्बिट कहाँ कर रहे हैं? 20,000 किलोमीटर अबव द ग्राउंड जो है ये ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। अगर आप ये जो फिगर देख, ये जो डायग्राम है इसमें आप देखें तो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। तो ये जो 24 नेविगेशनल सिस्टम जो हैं ये ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, और सिक्स अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिटल प्लेन्स हैं। ये देखिए ये ऑर्बिटल प्लेन्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये डिफरेंट ऑर्बिटल प्लेन्स हैं जिसमें 4 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, हर ऑर्बिटल प्लेन में 4 सैटेलाइट्स हैं, और इस तरह से ये 6 अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिटल प्लेन्स हैं। तो इसका मतलब 24 नेविगेशन सिस्टम जो है ना वो ऑल द टाइम फॉर 24 आवर्स जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं ग्राउंड अर्थ के अराउंड, सो दैट के जो आपकी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो लोकेशंस हैं वो जो है वो रिकॉर्ड की जा सके आपके जो मतलब सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से। और इससे फिर ये भी है कि ऑन गोइंग जो चेंजेस हैं, जो अर्थ की डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, जो अर्थ के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है कि कहाँ पे डेफॉर्मेशन हो रही है, कहाँ पे लेट्स सपोज ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो
और उसके अलावा जो ग्राउंड मूवमेंट है उसको भी असेस किया जाता है थ्रू द जीपीएस, थ्रू द नेविगेशनल सिस्टम्स। और इस तरह से आप जो है वो अर्थ के इन्वायरमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। उसके अलावा नेविगेशन सिस्टम के लिए हर वक्त ये 6 और अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिटल प्लेन है, इसमें ये सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जिसको आपका गूगल मैप भी यूज़ करता है, जिसको आपके जो स्मार्टफोन है ये भी जीपीएस रिसीवर्स हैं, ठीक है। जो आपके स्मार्टफोन है ये जीपीएस रिसीवर्स हैं। इसके अलावा पोर्टेबल जीपीएस भी अवेलेबल हैं, ये जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। जो स्मार्टफोन के अंदर जो जीपीएस है वो इतने एक्यूरेट नहीं होते, इनकी एक्यूरेसी जो होती है वो काफ़ी लो होती है एज कम्पेयर टू दी पोर्टेबल जीपीएस रिसीवर्स डिवाइसेस, जो कि स्पेशली कंस्ट्रक्ट की जाती हैं एक्यूरेट लोकेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइंटिफिक डाटा होता है जिसकी कलेक्शन आप करते हैं उसके लिए आपके पास जीपीएस रिसीवर होना ज़रूरी है। और अदरवाइज आप अगर किसी जगह पे जाते हैं या किसी भी एरिया को विजिट करते हैं तो वो आपके पास जो आपका स्मार्टफोन में जीपीएस है वो भी उसकी लोकेशंस को प्रिजर्व कर लेता है, आपकी फोटोग्राफी की लोकेशंस को प्रिजर्व कर लेता है। तो वो इन पर्पजेस के लिए तो ओके है, राइट। लेकिन जब आपने साइंटिफिक पर्पस के लिए जो है लोकेशंस को यूज़ करना है तो उसके लिए फिर बेहतर ये कि आप प्रिसाइज लोकेशंस लें, और उसके लिए फिर आप जीपीएस जो आपके पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, जो रिसीवर्स हैं, उसको आप यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें क्या 4 सैटेलाइट्स हैं जो कि जीपीएस कैरी करते हैं, और 6 ऑर्बिट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड जो हैं वो हैं इस्टेब्लिश, और उनमें ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं जो आपके सैटेलाइट्स। इसका मतलब है कि जीपीएस जो है कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की या जो डिफरेंट एंटिटीज़ की लोकेशन है उसको। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वेरी सिंपल, एस इज इक्वल टू वी टी। इसका क्या मतलब है कि जैसे वो जो स्पीड आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फाइंड आउट करते हैं, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, ये वही फार्मूला है। इसमें क्या होता है कि आपके पास सिग्नल जो है वो सेंड किया जाता है, जो आपका जीपीएस जो सैटेलाइट है वो सिग्नल को सेंड करता है, उसकी वेलोसिटी हमें पता होती है, और जो ट्रैवल टाइम है इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के ऊपर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन जो है वो कितनी दूर है सैटेलाइट से, उसके लिए उसका डिस्टेंस एक सैटेलाइट से आ जाता है। इसी तरह से दूसरा सैटेलाइट भी उसी को लोकेट करता है तो दूसरा डिस्टेंस आ जाता है। इसी तरह से तीसरा डिस्टेंस भी आता है। तो इट मीन्स कि हमें 3 सैटेलाइट्स जो हैं उनका डाटा चाहिए किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फिक्स करने के लिए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से देयर इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड एज स्पेस रिसेक्शन मेथड। स्पेस रिसेक्शन मेथड जो है दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन एंड एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ ऑल द एंटिटीज एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो भी अर्थ के ऊपर कुछ भी है, कोई भी चीज है, सबकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप एक्वायर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन एंड एलिवेशन, राइट। तो इसमें जो जीपीएस मेथड्स हैं जो यूज करते हैं, जो यूज होते हैं, जो आपकी मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है उसको लेने के लिए स्पेशियल इंफॉर्मेशन को, उसमें एक है सिंगल पॉइंट स्टैटिक एंड काइनेमेटिक मेथड, another is static and relative positioning method, and then we have differential GPS method. So these are 3 methods. ये हम 3-4 स्लाइड्स के बाद इस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज हाउ कि जो आपके पास वर्ल्ड वाइड जीपीएस मॉनिटरिंग एंड कवरेज सिस्टम भी अवेलेबल है पूरी दुनिया में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। जैसे ये कोलोराडो स्प्रिंग में है, उसके बाद ये मॉनिटरिंग स्टेशन है, उसके बाद ये आपका मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो डिफरेंट अदर स्पॉट्स के अंदर भी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इनके डिफरेंट नाम हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं ये एक्चुअली सैटेलाइट से जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जो आपके पास डाटा जो सैटेलाइट बेस्ड जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो बाद में अर्थ के ऊपर ट्रांसमिट होता है। डिफरेंट स्टेशंस अवेलेबल हैं अर्थ के ऊपर जो कि ना सैटेलाइट की लोकेशन को देखते हैं, और उसके बाद उनसे जो डाटा रिसीव करते हैं उसको ऑन ग्राउंड जो आपके कोऑर्डिनेट्स है उसकी बेस के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको स्प्रेड करते हैं जो हमारे रिसीवर्स तक आती है। इसका मतलब ये होगा कि पहले जो सैटेलाइट से जो डाटा है वो हमारे जो ग्राउंड पे जो स्टेशंस हैं
उनके पास आता है और वो ग्राउंड स्टेशन से फिर डिसेमिनेट होता है जो हम रिसीवर्स हैं, जो हम लोग मतलब जो एंड प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं वो उस पर करेक्शंस लगती हैं, उसमें सारी एरर्स की एडजस्टमेंट होती हैं और फिर उसके बाद वो हमारे तक जो है वो डिफरेंट लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी जीपीएस अगर वो अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री से हट जाता है या उसकी ऑर्बिटिंग जो है वो चेंज हो जाती है तो उसको जो है वो ये स्टेशंस मॉनिटर करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि कोई भी माल फंक्शनिंग जो है सैटेलाइट्स की उसको वो फिक्स करें ऑन ग्राउंड स्टेशंस की मदद से। ठीक है, तो फिर ये कि सैटेलाइट्स की कैलिब्रेशन भी होती है, कैलिब्रेशन करके तो फिर वो जो डाटा है उसको जो है वो फिर आगे डिसेमिनेट किया जाता है। So these are also called as master control and monitoring station network. ठीक हो गया? So what are the advantages or uses? Definitely we can have the precise and accurate location of different objects on the ground. और फिर जो दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो फ्री, अगर आप अपने स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप एक रफ एस्टिमेशन किसी भी लोकेशन की लगा सकते हैं, लेकिन जब आपने उसको प्रिसाइजली मेजर करना है तो डेफिनेटली वी नीड दी पोर्टेबल जीपीएस डिवाइसेस। प्रिसाइज है, रिलायबल है, ऑल वेदर रिकॉर्डिंग जो है आप जीपीएस के थ्रू कर सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, अनलिमिटेड यूज़र कैपेसिटी। फिर आप डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, उनके अंदर जो चेंज आ रही है उसको आप जो है वो स्पेशली जो कुछ एरियाज आपके चेंज हो रहे हैं, लेट्स सपोज के लैंडस्केप चेंज हो रहा है, शहर बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, या आपके जो वेजिटेशन लैंड जो है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इस तरह की सारी चेंजेस जो हैं ये सारी स्पेशियल चेंजेस हैं। जब हमें डिफरेंट लोकेशंस का पता होगा तो तभी हम देख सकते हैं कि किस टाइम में जो है वो वहाँ पे लैंड यूज़ की सिचुएशन क्या थी और अभी क्या है। अगर आप माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में आप देखें जैसे आप क्वेरीज को डेवलप करते हैं, यू नो दैट के जो क्वेरीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती हैं, वो बहुत सारे मतलब जैसे क्या कहते हैं उसे, जो आपके पास डिपॉजिट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। उसके बाद फिर आप क्वेरी के ऑपरेशन को ज़्यादा बड़े एरिया पे ले जाते हैं, एक एरिया से ख़त्म हुआ दूसरे को डेवलप करते हैं, तो इस तरह से आप क्या कर रहे होते हैं, आप नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप किसी भी एरिया में चेंज डिटेक्शन भी कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो माइनिंग जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट कर रही है लोकल पॉपुलेशन को, जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको किस तरह से अफेक्ट कर रही है। सिमिलरली जो डिफॉरेस्टेशन है वो कैसे हो रही है, किस टाइम में क्या सिचुएशन थी किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सारी जो स्पेशियल चेंजेस हैं वो डेफिनेटली उनको ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स की लोकेशन होना ज़रूरी है डिफरेंट टाइम्स के अंदर, राइट। तो व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस? सबसे पहले ये कि जो आपके पास स्पेस सेगमेंट है, स्पेस सेगमेंट में क्या हो रहा है कि सैटेलाइट बेस्ड डाटा एक्विजिशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है मॉनिटरिंग स्टेशन जो आपके ग्राउंड के ऊपर है, जैसे वो मास्टर कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं, इंफॉर्मेशन को लेके उस पर करेक्शन अप्लाई करते हैं, करेक्शन अप्लाई करके फिर वो आपको एंड यूजर को दे देते हैं, ठीक है। एंड यूजर हम लोग हैं जो कि हमारे पास पोर्टेबल जीपीएस डिवाइसेस हैं जो कि रिसीव करती हैं, वो इटसेल्फ जीपीएस नहीं है, वो रिसीवर्स हैं। रिसीवर्स जो हैं वो डाटा को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो वो इटसेल्फ जो है वो खुद से डाटा की जो है ना वो जब जो लोकेशन है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ रिसीव करते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट्स को और ग्राउंड स्टेशंस को, तो वो फिर अकॉर्डिंगली वो सिग्नल को रीड किया जाता है कि इस पॉइंट की लोकेशन चाहिए, तो वो फिर उसकी लोकेशन जो है वो उस जो जो डिवाइस होती है रिसीवर डिवाइस उसको सेंड कर दी जाती है, राइट। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं आपके क्या कहते हैं उसे जीपीएस के। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई गेस कि यू कैन एक्सप्लेन दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस रिकॉर्डिंग। तो दिस इज द एग्जांपल कि आपके पास हैंड हेल्ड जीपीएस रिसीवर्स ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनकी एक्यूरेसी भी डिफरेंट है। कुछ ऐसे होते हैं जो मिलीमीटर्स तक एक्यूरेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेंटीमीटर्स तक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मीटर्स तक होते हैं। तो डेफिनेटली जितनी प्रिसीजन ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, उतनी प्राइस भी ज्यादा होती है। All right. So then we have a spatial resection method, and this is what we need to talk about.
how you can record the location of a particular object on the ground. तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि एटलीस्ट हमारे पास 3 सैटेलाइट्स का डेटा होना चाहिए अबाउट द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड सो दैट वी कैन फिक्स द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज ये सैटेलाइट के अंदर आपके पास जो है ना वो क्या कहते हैं उसे सैटेलाइट इवॉल्व कर रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर जो है ना वो एक पॉइंट है जिसको उसने रिकॉर्ड करना है। तो वी ऑलरेडी नो दैट के जो सैटेलाइट है वो पहले एक सिग्नल भेजेगा। अब वो सिग्नल क्या है, सिग्नल एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एंड वी नो दैट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, वो वेलोसिटी हमें पता है और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो आ जाता है ट्रैवल टाइम आ जाता है कि ट्रैवल टाइम जो है वो कितना लगा उसको किसी पर्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में। इससे हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, वो जो एक सैटेलाइट है वो एक सर्कल ड्रॉ कर देता है इस तरह से अपने अराउंड। ठीक है, लेट्स सपोज ये सैटेलाइट है, तो ये उसने जितना डिस्टेंस आता है लेट्स सपोज ये 500 किलोमीटर डिस्टेंस आता है, तो ये 500 किलोमीटर के रेडियस पे ये एक सर्कल लगा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है, ये रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है ना वो किसी भी जगह पे वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट वी रियली डोंट नो वेयर दैट पॉइंट कुड बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हमें एक और सैटेलाइट चाहिए। एक और सैटेलाइट अगर उसी पॉइंट को मेजर कर रहा है तो वो जाहिर है कि वो जो सैटेलाइट है उसका रेडियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा। हो सकता है वो 1000 किलोमीटर हो, तो फिर क्या होगा वो 1000 किलोमीटर के हिसाब से वो अपना लेट्स सपोज वो सैटेलाइट इधर है तो वो भी एक सर्कल ड्रॉ कर देगा ऐसे करके। ठीक है, उसी रेडियस में। फॉर एग्जांपल कि इसका सेंटर ये है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा गलत लग गया। लेट्स सपोज ये सेंटर है, यहाँ से आपने उसी रेडियस का सर्कल लगाया तो उसने यहाँ पे दूसरे सर्कल को यहाँ पे कट किया और यहाँ पे ये जैसे ये देख लीजिए ये P1 है और ये आपके पास P2 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ वी हैव नैरोड डाउन द लोकेशन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, स्टिल we cannot find out the location of that particular object। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें एक तीसरा जीपीएस जो सैटेलाइट जो है वो भी चाहिए। सैटेलाइट जो सी है वो क्या करेगा, वो लेट्स सपोज वो यहाँ पे है। ठीक है, वो भी जो है वो डिस्टेंस मेजर करेगा उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद वो क्या करेगा, वो भी एक जो है वो रेडियस लगा देगा जो भी उसके पास रीडिंग आएगी कि उसका ऑब्जेक्ट कितना दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास तीसरा जो जीपीएस है वो भी सर्कल लगाएगा। तो जहां पे ट्रिपल सेक्शन होगा, ये देखिए जहां पे आपके पास ट्रिपल सेक्शन होगा, तीनों जीपीएस जहां पे उसको इंटरसेक्ट करेंगे लोकेशन को, दैट वुड बी द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज ये अब हम जीपीएस के थ्रू राउटिंग करते हैं और हमारी गाड़ी जा रही है। लेट्स सपोज हम गाड़ी जीपीएस लगाते हैं, किसी जगह पे हमें पहुंचना है तो वो गाड़ी के अंदर जीपीएस को ऑन कर लेते हैं। तो वो हमें वो जो जीपीएस जो है वो सैटेलाइट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, हमारे स्मार्टफोन पे आ रही होती है कि हमारी गाड़ी कहाँ कहाँ से मूव कर रही है। ठीक है, तो वो एक डायनामिक लोकेशन आ जाती है ना, गाड़ी मूव कर रही है तो वो जो कॉन्टिन्यूसली आपकी जो लोकेशन है वो सैटेलाइट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो आपको स्मार्टफोन के ऊपर दिखा रही है कि कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी गाड़ी की कब कब कैसे कैसे मूव कर रही है। तो वो इट मीन्स कि उसकी उस पर्टिकुलर व्हीकल की जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं है, वो मूव कर रही है। इट मीन्स कि आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो है लोकेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टैटिक लोकेशन, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है, उसकी लोकेशन को भी आप इसी तरीके से जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी कि आपके पास एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स का डाटा होना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट डाटा यू कैन फिक्स द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। नाउ वन थिंग इज लेफ्ट। अब क्वेश्चन ये है कि 3 पॉइंट्स तो हमें चाहिए किसी भी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल कंट्रोल के लिए।
लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को डिटरमिन करने के लिए आपके पास 3 सैटेलाइट्स का डाटा होना चाहिए। नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन। अब आपने एलिवेशन भी फाइंड आउट करनी है उसी पॉइंट की, तो उसके लिए आपको फिर इन एडिशन एक और सैटेलाइट का डाटा चाहिए, तो वो सैटेलाइट भी उसी को डिटरमिन कर रहा हो, ठीक है, उसकी लोकेशन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सिर्फ लोकेशन लेनी है किसी पॉइंट की, तो आपके पास 3 सैटेलाइट्स का डाटा चाहिए। अगर आपने उसकी एलिवेशन भी लेनी है, तो एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स का डाटा जो है वो आपके पास होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी बाज़ दफा क्विज़ेस में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन एट ए टाइम ये हो रहा होता है प्रैक्टिकली एक ही लोकेशन को 3 से ज्यादा सैटेलाइट्स जो है ना वो हो सकता है 5 या 6 सैटेलाइट्स जो है वो उसी लोकेशन को जो है वो प्रिसाइसली मेजर कर रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर हमारा डाटा, हमारी जो लोकेशन है वो ज्यादा रिफाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 3 सैटेलाइट्स का डाटा चाहिए हॉरिजॉन्टल लोकेशन के लिए। अगर आपके पास 4 सैटेलाइट्स का डाटा है तो फिर आपकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन भी आ जाती है, और उसकी एलिवेशन जो है या वर्टिकल कंट्रोल जो है उसके थ्रू आप उसकी एलिवेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ, अगर आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है तो मूविंग ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको भी सैटेलाइट्स मॉनिटर कर सकते हैं। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने स्मार्टफोन से कि जो आपकी गाड़ी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है और किस लोकेशन में जा रही है और किस पॉइंट पे जाना है, तो वो फिर कॉन्टिन्यूसली आपके जो इंटरफेस है मोबाइल के उसके ऊपर आ रहा होता है, मैप के ऊपर, कि आपकी गाड़ी जो है वो कितनी स्पीड से जा रही है और वो कितने टाइम में कब कहाँ पे पहुंचेगी अगर वो किस पर्टिकुलर स्पीड से वो मूव कर रही है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो फिक्स द डायनामिक लोकेशन ऑफ फाइंड आउट द डायनामिक लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, एंड आल्सो यू कैन फाइंड आउट दी क्या कहते हैं उसे, जो फिक्स लोकेशन है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। सिमिलरली जो ड्रोन्स आपके जो हैं वो डिफेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, तो वो भी आप उनको भी नेविगेट कर रहे होते हैं। आपने उनको नेविगेट किया होता है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में भी कई जगहों पे जो ड्रोन्स गिरते थे, तो वो क्या होता था, वो भी उन्होंने ऑलरेडी फिक्स किया जाता, टारगेट को फिक्स कर देते थे, आपका टारगेट है क्या, उसने किस जगह जाके हिट करना है। बाद दफा वो टारगेट आपका, जैसे कोई घर है, घर पे गिराना है, तो वो फिक्स्ड है, सारे को उसके ऊपर गिरना है उसने जाके। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, जैसे गाड़ी में कोई ऐसे बंदे जा रहे हैं जिनको आपने टारगेट करना है, तो वो फिर क्या होता है, वो उसकी जो मूविंग उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो फीड इन कर दी जाती है आपके सिस्टम में, ताकि वो जो ड्रोन है उसको एक्सेस करता हुआ डायरेक्टली उसको हिट करे। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द नेविगेशन फॉर द for the good of the humankind, and also you can also use it for the war purposes as well, जो कि ज़ाहिर है कि किसी को मारना जो है वो एक आसान काम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो भी मारे जाते हैं इस तरह के ड्रोन अटैक्स के अंदर, तो जो कि नहीं होने चाहिए, बट सच थिंग्स आर हैपनिंग। और शुक्र है कि अब आजकल नहीं हो रहे, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है वो डेफिनेटली वो भी एक तरह से एक एप्लीकेशन ही है इसी नेविगेशन सिस्टम की। All right. So you can also plan the navigation route. इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप किसी डेंस फॉरेस्ट के अंदर हैं और आपने उस फॉरेस्ट को जो है वो उसको आपने क्रॉस करना है। जब क्रॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि यार अगर आपका जीपीएस नहीं, तो हो सकता है कि वो आप डायरेक्शन भूल जाएं, आप किसी भी डायरेक्शन में निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस पॉइंट पे हैं, अगर आप उसका मैप आपके पास डाउनलोड कर लें और आप उसमें जो है वो जीपीएस में अपने लोकेशन जो है ना वो ऑलरेडी फीड इन कर दें कि आपने यहाँ से होके इस तरीके से आपने उसको एग्जिट कर देना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, या आपने किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है, तो वो फिर क्या होता है कि वो जीपीएस के अंदर जो है वो क्या कहते हैं उसे नेविगेशन ऑन हो जाती है, और इस तरह से आप जो है वो किसी भी इस तरह के एरिया को भी क्रॉस कर लेते हैं। अदरवाइज यही जो नेविगेशन राउट है, राउट में जैसे आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है या लाहौर से इस्लामाबाद आना है, तो वो राउट आपको रोड्स के नेटवर्क के थ्रू आपको जो है वो कनेक्ट कर देगा, और उसके बाद आपको गाइड करेगा जीपीएस के किस तरीके से जो है वो आप कौन सी रोड कब लेनी है, कब आपने किस रोड पे एंटर होना है, वो आप इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ जो है वो वॉइस की फॉर्म में आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द राउट्स आर नेविगेटेड थ्रू जीपीएस। और इसका जो स्पेशली यूज जब आप किसी डेंस फॉरेस्ट के अंदर हैं, तो वहाँ पे भी
आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल्स का मसला वहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर आपका रिसीवर बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। So now we are going to talk about the methods of GPS positioning. पहले हमने डिस्कस किया था कि स्पेशियल रिसेक्शन मेथड एक्चुअली है क्या। इसके बाद अब है मेथड ऑफ जीपीएस पोजीशनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करना क्या है कि लेट्स सपोज कि आपका जो जो एंटिटी है या जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही है, तो उसमें आपके पास मेथड आ जाता है सिंगल पॉइंट स्टैटिक एंड काइनेमेटिक जीपीएस मेजरमेंट्स। तो लेट्स सपोज कि आपने किसी एक ही पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है और वो स्टैटिक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वही के सैटेलाइट्स आपके डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं और वो क्या करेंगे, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने ऑर्बिट के हिसाब से जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की। तो वो जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है फिर इसी तरह से वो उसकी एलिवेशन भी आ जाएगी आपके पास, उसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल जो आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो भी उसके आ जाएंगे। तो ये फिक्स है। इसके अलावा फिर इसी में है कि काइनेमेटिक जीपीएस मेजरमेंट, कि वो जो ऑब्जेक्ट आपका है वो मूव भी कर रहा है, जैसे आपकी गाड़ी मूव कर रही है, तो इस तरह से वो जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे सिंगल पॉइंट स्टैटिक एंड काइनेमेटिक जीपीएस मेजरमेंट। ठीक हो गया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी है रिलेटिव स्टैटिक मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिवली आपके पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे एक लाहौर है और एक आपके पास इस्लामाबाद है, तो आपने दोनों सिटीज के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास दो पॉइंट्स की लोकेशन जो है वो भी पता होनी चाहिए, उसकी एलिवेशन और जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए ये डिस्टेंस कहाँ से आएगा, जब आपके पास ये लोकेशन आ जाएगी, ये लोकेशन भी आ जाएगी, तो आप इनका इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे वो आप डेफिनेटली रोड्स के अलॉन्ग होगा कि रोड आपका जहां जहां से गुजर रहा है उसी तरीके से वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। और इसको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो रोड की बेस के ऊपर डिस्टेंस होगा वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास है रिलेटिव स्टैटिक जीपीएस मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये दूसरा मेथड, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है डिफरेंशियल जीपीएस। डिफरेंशियल जीपीएस जो होता है तो ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है। डिफरेंशियल जीपीएस में ये होता है कि आपके पास सैटेलाइट्स जो है ना वो 3 या 4 या इससे ज्यादा सैटेलाइट्स को दो पॉइंट्स की लोकेशंस को ले रहे होते हैं, ठीक है, या एक पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद वो जो उसकी अगर आपने बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेनी है दो पॉइंट्स की, तो फिर आपके पास एक बेस स्टेशन, जैसे कि हमने देखा कि मास्टर कंट्रोल पॉइंट जो है ना वो भी अर्थ के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस पे इंस्टॉल्ड हैं, स्टेशंस अवेलेबल हैं जो कि जीपीएस को मॉनिटर करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक तो ये कि आप डायरेक्ट जो है वो जीपीएस के थ्रू जो है वो सैटेलाइट्स के थ्रू आप कोऑर्डिनेट्स ले लें। एक मेथड ये है डिफरेंशियल जीपीएस। डिफरेंशियल जीपीएस में ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी ये जो सैटेलाइट बेस्ड डाटा एक्वायर होता है वो बेस स्टेशन पे आता है। बेस स्टेशन जो है फिर वो एज पर दी लोकेशन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑन द सरफेस वो उसके ऊपर करेक्शन अप्लाई करता है। करेक्शन अप्लाई करके आपको ज्यादा रिफाइंड डाटा जो है वो उन दो पॉइंट्स का जो है वो जो सेंड करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल जीपीएस पोजीशनिंग, ठीक हो गया। तो ये मेथड जो है वो ये ज्यादा एक्यूरेट है, जिसमें बेस स्टेशन भी आ जाता है। जाहिर है कि अगर आप डायरेक्टली सैटेलाइट से मेजर करेंगे तो उसमें एरर हो सकता है दो पॉइंट्स जो आपके ऊपर है। लेकिन एक मेथड ये है कि सैटेलाइट का डाटा बेस स्टेशन पे चला जाए और वो जो बेस स्टेशन है फिर उस पर करेक्शन अप्लाई करके आपका एरिया किस जोन के अंदर है, यूटीएम जोन के अंदर है, और वहां पे कौन सा प्रोजेक्शन सिस्टम ज्यादा बेहतर है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोकल कोऑर्डिनेट्स जो है आपके वो जो बेस्ट सूटेड है वो आपको उसके दे देता है वो उन पॉइंट्स के, ठीक है। तो बेस स्टेशन जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो ये इसको कहते हैं डिफरेंशियल जीपीएस पोजीशनिंग सिस्टम, और ये ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम है, राइट। All right, so this was all about the maps and georeferencing and how we acquire the GIS based data by using different type of methods, ठीक है। और अब हमने नेक्स्ट फेज ये है कि आप डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले तो आप
के पास जो है वो मैप्स होने चाहिए। ठीक है, कि आपने मैप्स क्रिएट करना है ना, तो मैप्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमने डिस्कस की, उसके बाद जियो रेफरेंसिंग जो है उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं मैप को क्रिएट करने में। उसके बाद हमने डाटा की एक्विजिशन को डिस्कस कर लिया, और डाटा जब आप एक्वायर कर रहे हैं तो फिर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपने रिप्रेजेंट करना है जीआईएस के अंदर। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे, उसमें आपको फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, जो कि महमूद साहब जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर थे माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, उसमें से मैंने ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं। तो कि किस तरह से आप डाटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं रियल वर्ल्ड जो आपके पास जो फीचर्स हैं उनकी। तो अब आप करेंगे क्या, अब इसमें सबसे पहले तो आपने यहाँ पे नोट करना है कि कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको आपने मैप पे शो करना है। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है ना ये कुछ ये पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद ये आप देखें तो ये आपके पास ट्रीज हैं। ठीक है, इनका डाटा लेना आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ ट्री हैं, ये एक जैसे फीचर हो गया, ये ग्रास है, ये एक पूल है, ये उसकी बाउंड्री है। ठीक है, इस तरह से आपने ये देखना है कि किस किस फीचर की इंफॉर्मेशन आपने लेनी है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, आपने उसको सर्कल कर लिया। सर्कल करने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने मतलब ये आपके पास फिर आप उसकी डिजिटाइजेशन करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपने ट्रीज को डिजिटाइज करना है, तो ये उस ट्री का टोटल रेडियस बन रहा है जो स्प्रेड है। ऊपर से अगर आप देखें ये दूसरा ट्री है, फिर ये तीसरा, चौथा है, और यहाँ पे मतलब जो है वो अनदर क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी मेरे ख्याल में ये सर्कल यहाँ पे ट्री के लिए नहीं होना चाहिए था, या अगर पत्थर हैं तो उनके लिए अलहदा से सर्कल ड्रा करना चाहिए। फिर यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन है। तो आपने क्या किया कि इस तरह से आप इसको सर्कल कर लेंगे। इसका मतलब क्या, इसे कहते हैं डिजिटाइजेशन। लेट्स सपोज आपके पास ये मैप ऑलरेडी अवेलेबल है या ये पिक्चर अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप जीआईएस में ओपन करेंगे। ओपन करके फिर आप इसकी जियो रेफरेंसिंग करेंगे कि ये पिक्चर किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेशली। लाहौर है तो लाहौर के किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको लाहौर का मैप खोलेंगे, मैप के ऊपर आप कंट्रोल पॉइंट्स लगा के इसको फिक्स करेंगे, फिर आप इसकी डिजिटाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी डिजिटाइजेशन करेंगे। तो ये आपके पास जैसे ये स्टोन है तो उसको अलहदा से डिजिटाइज कर लेंगे, इसको अलहदा से कर लेंगे। ये आपके पास बाउंड्री है उस स्विमिंग पूल की, इसको अलहदा से डिजिटाइज कर लेंगे। उसके बाद स्विमिंग पूल में पानी कहाँ पे है उसको आप अलहदा से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने डिजिटाइजेशन करनी है। ये मे बी नेक्स्ट लैब में आपको डिजिटाइजेशन सिखाई जाए कि आपने डिजिटाइजेशन करनी कैसे है। तो ये आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने अपना मैप कैसे बनाना है। ठीक है, आपने अपना डाटा कैसे जनरेट करना है। एक तो ये कि डाटा सोर्सेज अवेलेबल है, आपने डिफरेंट डाटा सोर्सेज से आपने इंफॉर्मेशन ले ली और उसको आप जीआईएस में ओपन करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। दैट इज वन थिंग। यहाँ पे डिजिटाइजेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि आपने अपना मैप कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल जो है वो फोटो है जिसपे आप देख सकते हैं डिफरेंट फीचर्स हैं, और डिफरेंट फीचर्स को आप डिजिटाइज करेंगे तो इनका नाम रखेंगे। लेट्स सपोज ये ट्रीज हैं तो आप इसको ट्रीज के नाम से सेव कर लेंगे। ये आपके पास स्टोन्स हैं तो आप इसको स्टोन्स के नाम से सेव कर लेंगे। इस तरह से ये आपके पास वाटर है तो आप वाटर बॉडी के नाम से इसको सेव कर लेंगे। राइट, तो ये आप इसको सेव करते जाएंगे एट्रीब्यूट टेबल्स के अंदर। ठीक है, डिजिटाइजेशन जब आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक टेबल बन रहा है जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट टेबल्स। उसके अंदर ये एंटिटीज जो है ना इनके आप नाम रखते जाएंगे, उसके बाद इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उनको आप वहां पे मेंशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये जो अपना मैप जो है वो इस तरीके से डिजिटाइजेशन से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप डिजिटाइजेशन कर लेंगे, बाकी ये सारी ग्रास है आप देखेंगे एक्चुअली ऐसे नजर आ रहा था, जब आपने डिजिटाइजेशन किया है तो वो आपका जो मैप है वो इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट कलर से आप उसको शो कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव योर ओन मैप बाय यूजिंग दी डिजिटाइजेशन टेक्निक्स इन जीआईएस। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। तो फिर उसके बाद आप जब मैप क्रिएट हो जाता है उसके बाद आप उसके ऊपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के थ्रू आपने जो है वो डिफरेंट लोकेशंस को आप फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कौन सा फीचर नीचे नज़र आ रहा है, या आप किसी फीचर को कलेक्ट जो है वो आप क्लिक करेंगे
तो उसकी जो है वो लोकेशन जो है वो आप जीआईएस में अगर आप देखें सॉफ्टवेयर के अंदर, तो कोने में वो ना जब आप कर्सर को मूव करते हैं तो वो लॉन्ग लेट जो नीचे वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो वो जहां जहां पे आप कर्सर को ले जाएंगे वो पॉइंट जो है ना उसकी लोकेशन आपको पता चल जाएगी, ठीक हो गया। So this is how you can have the data representation, and this is how you can also create your own data, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है वो आप क्या कहते हैं उस डाटा को प्रेजेंट करके आप एक मैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, कि डाटा को आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, डाटा को डिजिटाइज कैसे करना है। तो जीआईएस के अंदर जो फाइल्स होती हैं उनका जो आप क्रिएट करते हैं उसका कोई फॉर्मेट होता है जिसको जीआईएस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसमें एक होता है वेक्टर डाटा, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वेक्टर डाटा जो होता है ना वो ऐसा डाटा जिसमें आप डिफरेंट शेप्स को डिजिटाइज करते हैं, जिसकी कोई जो कॉन्टिन्यूस नहीं होती और जो एक प्रॉपर शेप आपको नजर आ रही है, ठीक है, उसको कहते हैं वेक्टर डाटा। जैसे ये जो आपके पास फूल है, इसको जब आप डिजिटाइज करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर शेप है, ये पॉलीगॉन की फॉर्म में होगा। ट्रीज हैं, अगर ये ज्यादा बड़े ट्रीज हैं तो इसको आप अगर आपने इसके आउटर बाउंड्रीज तक आपने इसको अगर आपने इसको करना है डिजिटाइज तो फिर इट मीन कि ये भी एक पॉलीगॉन ही बनेगी, ठीक है। और अगर आपने लेट्स सपोज कोई अदर पॉइंट्स हैं जो कि पॉइंट की फॉर्म में है तो उसको आप करते हैं तो वो पॉइंट की फॉर्म में आएगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई रिवर है, लेट्स सपोज ये ऐसे, तो उसको आप लीनियर फीचर या लाइन की फॉर्म में शो करेंगे। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं इनको ये जो फीचर्स हैं इनको हम कहते हैं वेक्टर डेटा, कि जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एक पर्टिकुलर शेप होती है और वो डिसकंटिन्यूअस होता है और उसको आप मैप के ऊपर शो कर सकते हैं। तो ऐसे फीचर्स को शो करने के लिए हम पॉइंट से शो करते हैं, बाद हम ट्रीज को पॉइंट से शो कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइंस हैं जो एक मतलब 1D फीचर है, जो पॉइंट है वो 0D फीचर है और पॉलीगॉन जो है वो 2D फीचर है। तो ये इस तरीके से आप इनको मतलब ये जीआईएस के अंदर आप क्लिक करते जाते हैं तो ये नोड्स बनते जाते हैं और इस तरीके से ये जो है वो जिस तरह का फीचर होगा उस तरह से आप इसको डिजिटाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन ऐसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, पॉलीगॉन जो है ये ट्राइंगल की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है। तो ये वेक्टर डाटा होता है जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये एट्रीब्यूट टेबल है जो जब आप डिफरेंट फीचर्स को डिजिटाइज करते जाते हैं तो एट्रीब्यूट टेबल में इसकी इंफॉर्मेशन आती जाती है। एक तो उसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप खुद से उसको देख लेते हैं कि ये ओपन वाटर है, डेवलप्ड ओपन स्पेस है, क्या है, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे दे देते हैं डिफरेंट फीचर्स की जो आप डिजिटाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो जो डिजिटाइजेशन होती है वो उसके साथ साथ एक एट्रीब्यूट टेबल भी बनता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके मैप के ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसमें ये पॉलीगॉन्स हैं और लाइंस भी होंगी और उसके अलावा पॉइंट्स भी होंगे, तो फिर आप इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में। लेट्स सपोज ये लाइन फीचर है, रोड गुजर रहा है तो आप उसको भी इस पे प्रेजेंट कर लेंगे। अब ये जैसे वो नंबर ऑफ फायर्स है, मतलब किसी भी जगह पे जो है ना वो फायर्स कितनी इरप्ट होती हैं, कितनी इंटेंसिटी है, तो उसके साथ ये मैप बना हुआ है। तो इस तरह किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट कलर्स के साथ आप शो कर सकते हैं मैप के ऊपर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्मेट, ठीक हो गया। एक होता है रास्टर डाटा। तो रास्टर डाटा को भी हमने ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया है। रास्टर डाटा में क्या होता है कि वो ग्रिड की फॉर्म में आपके पास जो है ना वो डाटा प्रिजर्व होता है। जो जितने भी रिमोट सेंसिंग के इमेजेस आते हैं वो ग्रिड की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब ग्रिड जो है वो आपका एक 1 by 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो ग्रिड आपका 1 by 1 मीटर भी हो सकता है, वो ग्रिड आपका 1 by 1 किलोमीटर भी हो सकता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन, एसपी, स्पेशियल रेजोल्यूशन, एसपी, उस रेजोल्यूशन का आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमने डिटेल में करना है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि डाटा को रिप्रेजेंट करते करते हैं। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका वेक्टर फॉर्मेट है और एक आपके पास है रास्टर फॉर्मेट, ठीक है। तो रास्टर फॉर्मेट में ग्रिड्स की फॉर्म में आप शेप्स को शो करते हैं। देखिए जैसे ये आपके पास है वेक्टर फॉर्मेट, ये जो है, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली जो आपकी शेप नजर आ रही है उस तरीके से आपने उसको डिजिटाइज कर लिया। लेकिन जब आप इसी मैप को ग्रिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको ग्रिड की फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा इरेगुलर सा बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे फीचर जो कि
जिनकी प्रॉपर एक शेप होती है उनको उनके लिए वेक्टर फॉर्मेट ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो इसको अब इसके एग्जांपल आपके सामने है कि वो रिवर है, लेट्स सपोज इसको आपने जब ग्रिड की फॉर्म में ले लिया, रास्टर की फॉर्म में ले लिया, तो ये इस तरह के ग्रिड्स बन जाएंगे। अब ग्रिड की एक खास वैल्यू, ग्रिड की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं रास्टर फॉर्मेट। तो रास्टर फॉर्मेट जो है वो ज्यादातर जो है वो एक्यूरेट होता है कॉन्टिन्यूस फीचर्स के लिए। कॉन्टिन्यूस फीचर में जैसे एलिवेशन है, अब जो एलिवेशन है मतलब अर्थ के ऊपर हर पॉइंट की एक एलिवेशन है, ठीक है। तो जब आप उसको ग्रिड्स की फॉर्म में ले जाएंगे तो इट मीन्स कि एलिवेशन एक कॉन्टिन्यूस फिनोमिना है। उसके अलावा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी एक कॉन्टिन्यूस फिनोमिना है, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है वो भी हर जगह पे आप मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे फीचर जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, जिसकी कोई खास शेप नहीं होती, जो इन्वायरमेंटल फीचर्स हैं, उनके लिए हम रास्टर फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है, जनरली। और जो ऐसे फीचर्स जो कि करेक्टरिस्टिक जिनकी शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है और उसकी बाउंड्रीज होती हैं, उसको फिर हम रास्टर, उसको हम वेक्टर फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये है कि दोनों फॉर्मेट इंटरचेंजेबल भी है, वेक्टर डाटा रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और रास्टर जो है वो वेक्टर में कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, और इसकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पूरे लेक्चर्स होंगे कि वेक्टर डाटा होता क्या है, वेक्टर की फर्दर क्या टाइप्स हैं, और वेक्टर डाटा को जनरेट कैसे करते हैं, तो उसके बाद रास्टर डाटा जो है वो कैसे जनरेट करते हैं, वो उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे रन करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपने यही याद रखना है कि जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है मैप के ऊपर वो दो फॉर्मेट्स में होती है। एक होती है आपकी वेक्टर फॉर्मेट और दूसरा होता है आपका रास्टर फॉर्मेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल talk about I mean more things related to the data representation, and also how we can process that data, what are the different processing techniques, and then we will talk about the basic configuration of vector data and raster data. So thank you very much. That's all for this week.